Good morning, students. Hello again. Today, now we are going to discuss the next chapter or the next topic of microeconomics. Up till date, you have taken three lectures of microeconomics, in which we studied or in which we discussed about what is microeconomics, how it is related to economics, how it is related to macroeconomics, what are the certain theories and models of microeconomics. And all those models which we discussed in brief in last lectures, you will study them in detail in next unit. So today, I, Ritu Singh, is going to take you forward to the next lectures of microeconomics. Okay. So here is the subject of microeconomics, and I'm your faculty Ritu Singh. In last lectures, we studied economics, microeconomics, what are the scope of economics, what is the importance of economics, how it is used for welfare, what is the difference between micro and macroeconomics, what are the several different theories of microeconomics, and what are few models of the microeconomics. Now, today's topic is objectives of a firm, or we can say economic objectives of a firm. Okay. So, economic objectives of a firm. What are economic objectives of a firm? This is the main question which we are going to discuss in this lecture. So here we can see some objectives listed, that any firm has few main objectives. First is profit maximization. Next is sales maximization. Then increased market share and market dominance. Next is social environmental concerns. Next is profit satisficing. And next is cooperatives. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म हमने लिस्ट किए हैं उसमें हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं. इस पे ध्यान दीजिए. सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी फर्म का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेस हाउस, बिजनेस या मार्केट में तभी आता है जब उसे प्रॉफिट अर्न करना होता है. बिकॉज इफ देयर इज प्रॉफिट देन देयर इज इनकम फॉर द फर्म एंड देन देयर इज जॉब फॉर द एम्प्लॉयज इन इट. देन सेल्स मैक्सिमाइजेशन. सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिकॉज इफ सेल्स इंक्रीज करेंगी, मैक्सिमाइज होंगी, तभी प्रॉफिट भी आपका मैक्सिमाइज होगा. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज इंक्रीज मार्केट शेयर. मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज किया जाए. द नेक्स्ट इज सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स. कोई भी फर्म, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म जिस भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस उनको कुछ सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी शो करने पड़ते हैं. एज वी नो और इफ यू हैव स्टडीड, इट इज मैंडेटरी फॉर firms to at least spend their 2% of profit on CSR activities, that is on corporate social responsibilities. कोई भी फर्म जिसका ईयरली प्रॉफिट 50 करोड़ से ज़्यादा है वो कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं और उनके लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने प्रॉफिट का एटलीस्ट 2%, मिनिमम 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ में खर्च करें. और कोई भी फर्म जब इस्टेब्लिश होती है या कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाती है तो उसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से भी पेपर्स अप्रूव करवाने पड़ते हैं कि वो जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे वो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. The next is profit satisficing. That is, the profit is divided between the different stakeholders of the firm in a fair manner. And cooperatives, how to cooperate with the different business houses and how to cooperate with other field of industry and business. So it is also stated here that sometimes there is an overlap of objectives also. For example, seeking to increase the market share will lead to lower profits in short term but will enable profit maximization in long run. तो ओवरलैप ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि आपस में ये दो या दो से अधिक ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड है. इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि अगर कोई कंपनी मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है, मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करना चाहती है, मार्केट में अपना
पेनिट्रेशन इंक्रीज करना चाहती है, तो हो सकता है शॉर्ट स्पैन के लिए उसके प्रॉफिट्स में कुछ कमी आएगी, बट इन लॉन्ग रन जब फाइनली जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम कंज्यूमर्स तक पहुंच चुकेगा और मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो remember these objectives of firm: sales maximization, profit maximization, utility maximization, welfare maximization, and growth maximization. To sum up all the objectives of a firm in a better manner, we have a diagram here which discusses the objectives of firm. तो पहला है sales maximization, that we have to produce क्वालिटी प्रोडक्ट जिसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान खरीदें. लोग पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, सो सेल्स कुड बी मैक्सिमाइज. जब सेल्स मैक्सिमाइज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा. और यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब यहाँ पे है कि अगर जो भी प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर तक पहुँच रहा है, उससे क्या क्या यूटिलिटी ड्राइव कर सकता है कंज्यूमर, वो जितनी ज़्यादा होगी वो कंज्यूमर के लिए उतनी हेल्पफुल होगी, उतनी यूजफुल होगी, वो प्रोडक्ट को उतना ही ज़्यादा कंज्यूम करेगा और दूसरों को भी इनकरेज करेगा. देन नेक्स्ट इज वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन. सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड कि वट एवर ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन इन अ फर्म, जो भी काम एक फर्म में हो रहा है, वो अपने आसपास की सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्रिएट करता रहे. And next is growth maximization. Every firm who has entered into a business, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जो कि बिजनेस में आई है, किसी मार्केट में जिसने कदम रखा है, उसकी यही कोशिश रहेगी कि वो अपने काम को बढ़ा सके. Nobody wants to remain stagnant. कोई भी एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे नहीं रहना चाहता. कोई फर्म जिसके पास काम करने के लिए अगर आज 100 क्लाइंट्स है, वो ये नहीं चाहेगी कि आगे भी उसके पास सिर्फ 100 क्लाइंट्स ही रहें. वो चाहेगी वे अपने ऑपरेशंस को इंक्रीज कर सके, अपना क्लाइंट बेस इंक्रीज कर सके, 100 से उसको 200 भी कर सके, सो दैट उसकी सेल्स बढ़े. सेल्स बढ़ने से प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए उन्हें कैपिटल और मिले, और साथ ही साथ उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज करे. सो लेट्स लुक इन डिटेल ऑल दीज टॉपिक्स. First point, and which is the foremost and most important point, is profit maximization. Every business is done, every job is done in order to gain some profit. So usually in economics, we assume firms are concerned with maximizing profit. And higher profit means higher dividend for shareholders. More profit can use to finance research and development. Higher profit makes firms less vulnerable to takeover, and higher profits also enable higher salaries for workers. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो यहाँ पे जो गोल है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. So these 4 points, the 4 points which you just saw on the screen are telling it all. ये हमें प्रॉपरली बता रहे हैं कि क्यों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इतना ज़रूरी है. अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो शेयर होल्डर्स के लिए हायर डिविडेंड्स क्रिएट करेगा. एक कंपनी के अंदर इन करेंट सिनेरियो, अ कंपनी इज जस्ट नॉट मेड ऑफ सम ओनर, वन सिंगल ओनर. किसी भी कंपनी में कोई सिंगल ओनर नहीं होता है. कंपनी इज कंप्राइज्ड ऑफ द ओनर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजर्स. तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, हायर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी हायर डिविडेंड्स मिलेंगे. जब उन्हें हायर डिविडेंड्स मिलेंगे, उनकी वेल्थ इंक्रीज करेगी. जब उनकी वेल्थ इंक्रीज करेगी तो वो कंपनी में और ज़्यादा शेयर्स परचेज करके, बॉन्ड्स परचेज करके और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे. So profit maximization directly affects here the shareholders' wealth maximization also. The next is more profit can be used to finance research and development. अब हमें ये मालूम है, जब हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, हमें उसमें ये पता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो मार्केट में आया है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे हमेशा लोगों के लिए यूजफुल नहीं रहेगा. पीपल विल वांट समथिंग मोर फ्रॉम इट. तो उस केस में हमें अपनी फर्म में, हमें अपनी कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट को सेटअप करना पड़ता है, जो कि बार बार इस पॉइंट पे काम करती रहती है कि कैसे वो प्रोडक्ट को बेटर बनाए. और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए अच्छे फाइनेंसेस की होना ज़रूरी है. तो अगर कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, हायर हो रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी फाइनेंसिंग प्रॉपरली मिलती रहती है.
The next is higher profit makes the firms less vulnerable for takeover. टेक ओवर की मेन डेफिनेशन यहाँ पे होती है कि जब एक स्ट्रॉन्ग कंपनी किसी वीक कंपनी को एक्वायर कर लेती है या परचेज कर लेती है. वीक कंपनी कब होती है? वीक कंपनी की सिचुएशन आपकी तब अकर होती है जब कंपनी में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ओकेजनल लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और शेयर होल्डर्स को प्रॉपर रेन्यूमरेशन नहीं दे पा रही है. तो उस केस में कई बार वीकर कंपनीज को स्ट्रॉन्गर कंपनीज को ऑफर देना पड़ता है कि वो उसे टेक ओवर करे सो दैट उनके ऑपरेशंस बिल्कुल बंद ना हो जाए. तो अगर हायर प्रॉफिट है, इफ देयर आर हायर प्रॉफिट्स इन द फर्म, उस फर्म को टेक ओवर करने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड all the people related to the company who are gaining some profit or salary from the company will be satisfied. The next is higher profit enables higher salaries for worker. तो कोई भी कंपनी जो कि जिसमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, जिसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, टाइम बाय टाइम उसके प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये उसके एम्प्लॉयज़ के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि अगर प्रॉफिट इंक्रीज करेगा तो ही वर्कर्स को अच्छी सैलरीज मिलेंगी और बोनसेस मिलेंगे. द नेक्स्ट फैक्टर, इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आते हैं हम उन्हें ऑल्टरनेटिव एम्स ऑफ फर्म्स भी कहते हैं. हमारे लिए मेन एम जो है, जो मेन एम आपका या जो मेन ऑब्जेक्टिव है किसी भी फर्म का, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्म इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट. So, but only focusing on the profit maximization is not considered very good approach in current scenario. आज के करंट सिनेरियो में जब बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गए हैं, बिजनेस इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन ओनली वन पर्सन, बिजनेस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो कई सारे होने लगे हैं. शेयर होल्डर्स भी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं. तो इस केस में हम सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे दबाव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ही सारे रिसोर्सेज नहीं लगा सकते, हमें फिर दूसरी चीज़ों को भी देखना पड़ेगा. तो उन पॉइंट्स को हमने ऑल्टरनेटिव एम्स ऑफ फर्म्स कहा है. एंड व्हाट आर दोज? फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट सैटिस्फाइसिंग. इन मेनी फर्म्स देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल. दोज हु ओन द कंपनी ऑफन डू नॉट गेट टू इन्वॉल्व इन डे टू डे रनिंग ऑफ कंपनी. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो कि शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनके पास ओनरशिप तो होती है कंपनी की, पर कंट्रोल नहीं होता है. कंट्रोल किसके पास होता है? कंट्रोल इज विद द मैनेजर्स हु आर एक्चुअली रनिंग द कंपनी, जो एक्चुअली में कंपनी चला रहे हैं, सारी पॉलिसीज़ को अप्लाई कर रहे हैं और सेल और प्रॉफिट को मैनेज कर रहे हैं. So this is a problem because although the owners may want to maximize profits, the managers have much less incentive to maximize profit because they do not get the same rewards. तो अगर किसी कंपनी में मैनेजर को शेयर होल्डर की तरह या मतलब एक अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है. So in this situation, managers create a minimum level of profit to keep shareholders happy but then maximize other objectives such as getting on with other workers, creating a proper communication with the other workers, and this condition is called principal agent problem. Principal agent problem, and this has to be overcome. Okay, तो प्रॉफिट सैटिस्फाइसिंग में हम ये पढ़ रहे हैं कि मैनेजर्स जो हैं कंपनी में, जो कि एक्चुअली कंपनी रन कर रहे हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं जो कि कंपनी के ओनर्स तो हैं बट उसकी रनिंग में ऑपरेशनल लेवल पे वहाँ पे हेल्प नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ पे जब मैनेजर और शेयर होल्डर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अकर होता है एंड दे टॉक अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो उस केस में जब मैनेजर एक नॉर्मल प्रॉफिट मेंटेन करता है सो दैट शेयर होल्डर्स रिमेन हैप्पी, उस कंडीशन को हम प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग कहेंगे कि हमने इतना प्रॉफिट बना दिया कि शेयर होल्डर हमारा सेटिस्फाई हो जाए. ये एक प्रॉब्लम है. इट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम ऑल्सो एंड ऑल्सो अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजर एंड शेयर होल्डर्स. तो इस केस को, इस चीज़ को डील करने के लिए भी
को इस पॉइंट को डील करने के लिए भी पॉलिसीज़ लगाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, सो दैट प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग इज नॉट अकर्स। सो इन दिस केस इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया कि जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, those who are taking the company on the operational level, helping it on the operational level, they are given some share options and performance related pay also, so that they are motivated enough to increase the profit. Okay, तो किसी भी कंपनी में जब किसी भी मैनेजर को, किसी भी वर्कर को प्रॉपर रेन्यूमरेशन मिलता है, उसके काम के लिए शाबाशी मिलती है, उसको इनकरेजमेंट मिलता है, तो वो उस कंपनी के लिए अपनी 100% एफिशिएंसी देता है और उसके प्रॉफिट को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है। देन इन दिस नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन। Firms often seek to increase their market share, even if it means less profit for a short-term period. This could occur for various reasons. For example, increased market share increases monopoly power and may enable the firm to put up prices and make profit in the long run. Okay, so sales maximization. तो हम यहाँ बात करें सेल्स मैक्सिमाइजेशन वर्ड से हम समझ रहे हैं कि हम यहाँ पे सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या उसे ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्स मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा? या तो आप जिस एग्जिस्टिंग मार्केट में हैं वहाँ पे जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जो भी यहाँ पे जितने भी 100% कंज्यूमर्स हैं, वो आप ही का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, या फिर आप अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए न्यू टेरिटरीज में भी इंटर कर रहे हैं। जब आप इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी लगाते हैं या अप्लाई करते हैं जहाँ पे आप अपना कंज्यूमर बेस बढ़ाना चाहते हैं बाय गिविंग न्यू प्रोडक्ट्स और सम डिस्काउंट, तो उस केस में थोड़े समय के लिए या हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए फर्म का प्रॉफिट अफेक्ट होता है। और इसके रीजंस क्या होते हैं? पहला रीजन है आपका increased market share increases monopoly power and may enable the firm to put up prices and make more profit in the long run. तो जब मार्केट शेयर इंक्रीज कर रहा है, किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को जो यूटिलिटी है कंज्यूमर्स के लिए, वो कोई एक ही प्रोडक्ट पूरी कर रहा है और उसके लिए कंज्यूमर्स बढ़ रहे हैं, तो इस केस में धीरे धीरे कंपनी के पास या उस प्रोड्यूसर के पास मोनोपोली पावर आने लगती है। पर उस मोनोपोली तक पहुंचने के लिए उसे कई तरह के प्राइसिंग मेथड्स लगाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है या अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उसका इंक्रीज करना चाहता है, उसकी थ्रेशोल्ड इंक्रीज करना चाहता है, तो वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर देता है या बहुत ज़्यादा गिरा देता है। जब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मतलब लो हो जाती है, मतलब इट बिकम्स अफोर्डेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल, द मार्केट शेयर इंक्रीजेज। फिर पेनिट्रेशन प्राइसिंग में क्या होता है कि कुछ समय तक फॉर सम टाइम पीरियड लो ही प्राइस रखा जाता है, प्राइस इज केप्ट लो फॉर दैट प्रोडक्ट सो दैट पीपल बिकम यूज टू दैट प्रोडक्ट। और फिर जब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाते हैं, वो उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, तो फिर जब प्राइस अगर बढ़ने भी लगता है धीरे धीरे प्रोडक्ट का, तो वो उसको छोड़ते नहीं है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि यू हैव मेड पीपल अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, नाउ दे आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, नाउ दे यूज योर प्रोडक्ट एज अ हैबिट, सो even if some price is increasing, they don't mind and still purchase the product, which will eventually increase the sales of the product. Next point in this sales maximization is that managers prefer to work for bigger company as it leads to greater prestige and higher salaries. तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी ज़रूरी है क्योंकि अच्छे मैनेजर्स ऐसे कंपनी में काम करना पसंद करते हैं जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों। देन ऑल्सो द इंक्रीजिंग मार्केट शेयर फोर्स राइवल्स आउट ऑफ बिजनेस। ओके, and in order to do this, sometimes the firms also engage in predatory pricing, which involves to making a loss to force rival out of business. तो मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए मार्केट शेयर इंक्रीज करती है कंपनी, तो एक यहाँ पे एग्जांपल और है प्रेडिटोरी प्राइसिंग का।
प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है, इस ये फैक्टर में क्या होता है कि कंपनी अपने प्राइसेस इतने कम कर देती है, प्रोडक्ट के इतने कम कर देती है कि कंपनी को लॉस होने लगता है। उसको लॉस तो हो रहा होता है, बट लोग उसका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, और उस प्रोडक्ट के लिए धीरे धीरे हैबिट डेवलप करने लगते हैं। और वो इतने मतलब इस इतने समय तक के लिए उस लॉस को मेंटेन करता है कि जो जितने भी राइवल्स हैं बिजनेस में, या जो छोटे राइवल्स हैं बिजनेस में, वो इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको मैं फिर से वही सेम एग्जांपल रिपीट करूंगी कि जब आपका जियो के सिम आए मार्केट में, उन्होंने शुरुआत में पेनिट्रेशन प्राइसिंग की और लोगों को जियो सिम के बारे में अवेयर किया, लोगों ने सिम्स खरीदना शुरू किया। उसके बाद पहले कई सालों तक, आफ्टर 2016 अराउंड 2017 एंड 18, कंपनी को, रिलायंस जियो को लॉस होता रहा, बट वो तब भी उन्होंने अपने प्राइसेस इंक्रीज नहीं किए। पहले उन्होंने अपने प्राइसेस पेनिट्रेट करने के लिए यूज किए, देन दे केप्ट दोज प्राइसेस स्मॉल और लो इन ऑर्डर टू प्रीडेट ऑन द अदर कंपनीज। जब ये हुआ तो कई सारी टेलीकॉम कंपनीज धीरे धीरे बंद होने लगी या एक्वायर होने लगी। फॉर एग्जाम्पल, आइडिया वॉज एक्वायर्ड बाय द वोडाफोन, or it was not acquired by the Vodafone, but they had, Idea and Vodafone had to merge in order to save their operations. Now there is a time, now there is a situation when there are talks that Airtel is going to merge with Vodafone and Idea also, in order to increase their customer base and in order to pool their resources. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में जो जियो, व्हेन रिलायंस जियो केम इनटू द एग्जिस्टेंस, देयर वर 3 or 4 कंपनीज। जब जियो ने प्रेडिटोरी प्राइसिंग के थ्रू मैक्सिमम कंज्यूमर्स को अपनी तरफ कर लिया, दूसरी छोटी कंपनीज का नुकसान होने लगा, वो धीरे धीरे बंद होने लगी या उनके ऑपरेशन श्रिंक करने लगे। फिर वो जो बाकी बची हुई कंपनियां थी वो बिल्कुल बंद ना हो जाए, उन्होंने क्या किया, आपस में मर्जर इस्टेब्लिश कर लिया, सो दैट दे कैन पूल देयर रिसोर्सेज। वो अपने सारे रिसोर्सेज को पूल करके जियो के अगेंस्ट मार्केट मेंटेन कर सकें, ऑपरेशंस मेंटेन कर सकें। एंड देन पहले जहां मार्केट में कई सारी टेलीकॉम कंपनीज थी, जिसमें हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूनिनॉर, T24, टाटा डोकोमो एंड आइडिया एंड वोडा एंड मतलब and Airtel, all these they were companies, matlab there were like 7 to 8 telecom companies in the market. Now they are left only with 2 or 3. If we talk about the major players in the market, we have BSNL. BSNL is still in the market because it has reached to rural areas also. Then next is Reliance Jio, and other is Airtel, and the next is Vodafone Idea merger. So, और अगर फ्यूचर में एयरटेल का मर्जर वोडाफोन आइडिया के साथ हो जाता है, तो वी विल हैव ओनली 3 मेजर प्लेयर्स इन द मार्केट। BSNL बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट एंटिटी, नेक्स्ट इज जियो, एंड द नेक्स्ट विल बी एयरटेल वोडा आइडिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दैट द मार्केट शेयर हैज इंक्रीज्ड, most of the customers have shifted to Jio, and for some time period Reliance had to maintain losses. They were having losses, but they were increasing their customer base. वो अपना number of users को increase कर रहे थे, और अब जब उनके sufficient number of users increase हो गए हैं, तो पहले जो प्रोग्राम या पहले जो टैरिफ, आपका इंटरनेट टैरिफ 399 रुपीज़ में अवेलेबल था, now it cost around 500 rupees to the users. 500 or a little more than that to the users. Okay, so this was for the sales maximization. Next point is growth maximization. This is similar to sales maximization and may involve merger and takeovers. With this objective, a firm may be willing to make lower level of profit in order to increase size and gain more market share. More market share increases its monopoly power and ability to be a price setter. सो ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन भी हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन के जैसा ही है। कंपनीज या फर्म्स जो भी होती हैं वो ग्रो करना चाहती हैं, वो हमेशा ये चाहती है कि उनका कस्टमर बेस हमेशा इंक्रीज होता रहे। तो उस केस में क्या होता है कि कंपनीज मर्जर करती हैं या फिर स्मॉलर कंपनीज का टेक ओवर करती हैं, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर
मार्केट शेयर। और जब मार्केट शेयर इंक्रीज कर जाता है, किसी कंपनी के पास मेजर पावर आ जाती है, तो वो मोनोपोली पावर की तरह बिहेव करने लगता है। Next is your long run profit maximization. So, in above 3 points in profit maximization and in your growth maximization, in your sales maximization, so in last three topics or in last 3 points we studied of growth maximization, sales maximization, and profit maximization. We studied that company or a firm is always looking to increase profit, to increase the customer base. So, long term profit maximization or long run profit maximization is important for the firms. Why? Because this long run profits, yeah, long term profit maximization will give a strong hold in the market. So, sometimes firms sacrifice profit in short term to increase profits in long term. So, for which I gave the example of Reliance Jio, which is applicable here. For example, by investing heavily in new capacity, firms may lose for a short run but enable higher profits in the future. तो हम ये कह सकते हैं कि 4G डेटा के बिजनेस में आने से पहले रिलायंस कंपनी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया अपने टावर्स इस्टेब्लिश करने में, कैपेसिटी इस्टेब्लिश करने में, लोगों को एम्प्लॉय करने में, अच्छे मैनेजर्स को एम्प्लॉय करने में। थोड़े दिनों के लिए उनको कुछ लॉसेस हुए और उन्होंने कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए भी कुछ दिनों के लिए लॉसेस बियर किए। बट नाउ व्हेन अ लॉट ऑफ कंज्यूमर बेस इज गोइंग हैज शिफ्टेड टुवर्ड रिलायंस जियो, दे आर इन ensuring that they get profit in long runs. The next is social and environmental concerns. So next topic is here social and environmental concerns. तो यहाँ पे social and environmental concerns किस चीज़ पे हैं? Nowadays, we have seen that companies are relating more to their consumers and to the environmental factors. They are making sure that they make a good impression on their consumers. ओके, सो सोशल एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पे ये कह रहे हैं, इस चीज़ की बात करते हैं कि जब कोई फर्म कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस करती है, व्हेन अ फर्म रन्स टू एन एक्स्ट्रा माइल जस्ट टू इंश्योर अ गुड impression on its consumer, then we can consider it as a good firm. We can see the statement here. The firm may incur extra expense to choose products which do not harm the environment or products that are not tested on animals. Alternatively, firms may be concerned about local community and some charitable concerns. So these are the social and environmental concerns.
For example, there is a organization called PETA, which works for the release of animals and which works so that no cruelty is done on animals. तो अभी तक क्या होता था कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कई सारी कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने से पहले उन्हें एनिमल्स पे टेस्ट करती थी. Those tests was not good. मतलब those tests were quite horrible, very horrid, and sometimes used to kill the animals on which they were tested. नाउ इफ़ यू सी, अगर आप मार्केट में देखेंगे और आप मार्केट के ट्रेंड को स्टडी करेंगे तो कई सारी कंपनीज कॉस्मेटिक कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को इस पॉइंट्स पे या इस पॉइंट के साथ एडवर्टाइज करती हैं कि दे वर नॉट टेस्टेड क्लिनिकली ऑन एनिमल्स, नो एनिमल क्रुएलिटी वॉज परफॉर्म्ड. उसी तरीके से जब कोई कंपनी लोकल कम्युनिटी के लिए कुछ वेलफेयर वर्क करती है, कुछ चैरिटेबल कंसर्न्स प्रोवाइड करती है, तो वो सोशल एंड इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में आते हैं. एंड आई हैव स्टेटेड अर्लियर ऑल्सो कि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, ईयरली प्रॉफिट 50 करोड़ से ज़्यादा है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने प्रॉफिट का 2%, एटलीस्ट 2% सोशल कंसर्न्स पे, यानी कि CSR एक्टिविटीज़ पे, यानी कि चैरिटेबल सोशल एक्टिविटीज़ पे खर्च करें. Some firms also adopt social environmental concerns as part of their branding. This can ultimately help profitability as the brand becomes more attractive to consumers. Social environmental concerns इस पे भी हैं कि we are not supposed to use coal too much. We are not supposed to use electricity too much so that there is a consumption of coal and causing a carbon footprint should be reduced. So in current scenario, in some companies and a lot of companies are getting to idea of solar इलेक्ट्रिसिटी मेकिंग. कई सारी कंपनीज हैं जो कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल करती हैं अपने फैक्ट्री प्रीमिसेस में, सो दैट कि वो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम से कम कर सके और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी कंट्रीब्यूट कर सके. Solar panels are considered a very good, very environment friendly method of producing electricity and energy, and helps the individual houses and some business houses to reduce their carbon footprint. आप अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो नॉर्मल जो कोल से प्रोड्यूस होती है, तो आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे आप उतना ज़्यादा कार्बन कंजप्शन इंक्रीज करोगे. अगर आप अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं उसको सोलर जनरेशन की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे. सो बच्चे, जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और जब आप इस पॉइंट को मार्केट में अपने कंज्यूमर्स के सामने एडवर्टाइज करते हैं तो आपके ब्रांड को एक अच्छा नाम मिलता है एंड योर ब्रांड बिकम्स अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर्स. The next is, and the last point of this topic is cooperatives. Cooperatives have a very completely different objective to a typical product life cycle. A cooperative is run to maximize the welfare of all stakeholders, especially workers, and any profit the cooperative makes will be shared amongst all members. So, in a business, in a firm, sometimes cooperative societies are established. These cooperative societies are established so that whatever profit a company is making, it is not just only shared between the shareholders and the managers, but the final workers, or we can say the worker, the first worker in the line of production, is also benefited. जब एक कंपनी अपने वर्कर्स के लिए, जो उसके लास्ट लाइन वर्कर्स हैं, या हम कह सकते हैं जो उसके ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, या जो उसके फर्स्ट लेवल के वर्कर्स हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उनके लिए वो जब वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्रिएट करती है तो उस केस को हम कोऑपरेटिव बोलते हैं. ये एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी फर्म के लिए, बिकॉज नाउ योर वर्कर, योर एम्प्लॉयज़ बेनिफिटेड. जब वो बेनिफिट हो रहा है आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से, आपके हेल्प की वजह से, आपकी पॉलिसीज़ की वजह से, तो उसका आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए ट्रस्ट इंक्रीज करता है, एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग विद मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर हिज फर्म. जब एक फर्म he starts working with maximum efficiency of his for his work, और जब एक
वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है जो कि फर्म की ब्रांडिंग को बेटर करता है. So this was all for the today's lecture. So in today's lecture, we focus on the topic of objectives of a firm, or we can say economic objectives of the firm. जिसमें सबसे important objective है आपका profit maximization. The next was sales maximization. The next was increasing the market share, and the next was social and environmental concerns, and one was profit satisficing, and the next was last was cooperatives. So hopefully you understand or understood all the topics today. And if you have any questions further, you can ask me. You can put up your questions on Google Classrooms, or you can put up your questions on my mail ID. I'll try to answer as soon as possible. You'll get your answers as soon as possible, and you can also ask questions in classroom also. So this is Ritu Singh. I'll just end the class here now. This was the today's topic, and I hope to see you again in next class. So thank you so much, students, and have a nice day ahead.